Good morning, children. So, in mathematics, in lesson tens and hundreds, okay, let's see. Yes, you can see here a decimal number is there 0.9. What is there? 0.9. Okay, decimal numbers ना tens and hundreds अभी हम बात कर रहे थे last class में. So here the decimal number 0.9. Just see. You can see three parts are there. The middle one is just decimal. You can see the decimal here. Okay, you can see the decimal here, the symbol of decimal. Okay, and left side you can see 0. Okay, and right side you can see 9. Okay, so three parts are there. The middle one decimal, left part and right part. Okay, left part is whole number. Whole means complete. Okay, that is like you say ones, tens, hundreds, okay, thousands ऐसे. But the right side you can see these are parts. Okay, these are parts. You can see fractions also, like tenths, you will see hundreds, okay, thousands, okay, like this. So this 0.9, this decimal number is represented in through this picture also. You can see total how many parts are there in this picture. 10 parts are there now, and only 9 parts are colored. So you can see, you can represent that as 9 upon 10 also in fraction, and in decimal you can represent like 0.9, because total 10 parts are there. When 10 parts are there, it means we're talking about tenths only. ठीक है, तो टेंथ की बात करते हैं, इट मीन्स टेन पार्ट्स आर देयर. और कितना पार्ट्स हमने लिया? 9 पार्ट्स. यू कैन राइट 0 देन पॉइंट एंड देन 9 लाइक दिस in decimal. And in picture form you can like this, you can write like this, and in fraction you can write like 9 upon 10, and you read that 9 tenths. Okay, and in number line you can represent like this, like from 0 to 1 you can draw 10 parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 parts are there. तो ओनली 9 पार्ट्स तक आपको लेना है, तो 9 पार्ट्स पे आप यहाँ पे कोई सिंबल लगा दो. दिस इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टेंथ्स. वन मोर एग्जांपल you can see here. You can see one more decimal number, that is 2.2. What you will read? 2.2. Okay, then this is middle one, that is a decimal number now. This is a decimal symbol. You can see decimal symbol there. ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है? लेफ्ट साइड में को यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और राइट में भी 2 लिखा हुआ है. अब इसका डिफरेंस देखो, समझते हैं अच्छे से. दिस 2 मीन्स दिस टू कंप्लीट शेप्स. देखो, यू कैन सी थ्री शेप्स आर देयर, 1 2 एंड 3. ठीक है, फर्स्ट 2 आर fully colored. It means that is whole, one whole and 2 whole. So that means this 2 is for these 2 shapes. And after that, in third one you can see 10 parts are there and only 2 parts are colored. It means that is 2 upon 10. That is 2 upon 10. 2 upon 10 are colored. So you will write 2 upon 10 means 2 tenths, and that is written as 0.2. That's why here you can write 2.2 like this. This 2 is for complete whole, and this right side one 2 is for fraction, that is per part, 2 parts. Okay, so next you can see this is complete. These 2 are complete now. Right here 2, and then here this is 2 upon 10. Right, 2 upon 10. याद आ रहा है आपको? This is a mixed fraction. हमने mixed fraction देखा था ना, 2:2 upon 10. ठीक है, उसको हमने चेंज भी किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को साथ में पढ़ रहे हैं, डेसिमल और फ्रैक्शन को दोनों साथ में पढ़ रहे हैं. आप इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यस, यू कैन ड्रॉ नंबर लाइन लाइक दिस, 0 देन 1 देन 2 एंड देन 3. तो 2 तो कंप्लीट है, तो आपको यहाँ पे 1 के बाद 2 के बाद आपको यहाँ पे केवल 2 पार्ट्स पे आपको लेना है. दैट इज दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 2.2. यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. नेक्स्ट, यस, यू हैव वन क्वेश्चन. Convert the decimal notation to a fraction. You can see a decimal notation there, 0.5. So 0.5 means what? You know very well. This is 0.5 means this is decimal part. This is whole part. Whole means 0. Whole यहाँ पे 0 है. And then right side में क्या है यहाँ पे? 5. 5 means 5 upon 10. ठीक है, because this is tenth. अभी हम place value भी देखेंगे. Because in place value this is tenth place value. Okay, this is ones place value. तो डेसिमल के जो लेफ्ट में होता है दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यू नो, एंड डेसिमल के जो राइट में होता है दैट इज टेंस. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको? टेंथ से स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज 0.5 मीन्स 5 अपॉन 10. सो नेक्स्ट 5 अपॉन 10 यहाँ पे भी नहीं है, ऑप्शन में मिल रहा है कहीं 5 अपॉन 10 नहीं है ना. सो यू कैन सी 5 अपॉन 10. इसको आप
कट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो ना फ्रैक्शन में. सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. सो दैट विल बी 1/2. अब देखो 1/2 मिल गया ऑप्शन में. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट, यस, वन मोर रिप्रेजेंटेशन फॉर डेसिमल. ठीक है, अगेन द सेम थिंग. यू कैन सी इन दिस पिक्चर टोटल 10 parts are there. 10 parts are there now and 7 parts are colored. So you can write that as 7/10 in fraction, 0.7 in decimal, and you can read that 7/10. क्लियर ना. यहाँ पे देखो फिर से एक बार इसको आप ड्रॉ कर लेना. ठीक है, ये कितना अच्छे से रिप्रेजेंट हुआ है, इसको ड्रॉ कर लेना. लाइक 0.7 मीन्स दिस 7 इज 10th प्लेस वैल्यू एंड दिस इज वंस. बीच में क्या है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है. और जो लेफ्ट में होता है दैट इज डेसिमल के जब लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, होल पार्ट. और डेसिमल के राइट में जो होता है उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट टेंस अगेन. ये सब आपको बस देखना है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस देख सकते हो. सॉरी. नेक्स्ट, यस, वन मोर रिप्रेजेंटेशन. यू कैन सी अ डेसिमल नंबर 23.4. ओके, सो व्हेन यू एक्सपैंड दिस, सो 23, दिस सी डेसिमल बीच में क्या है, डेसिमल हो गया. लेफ्ट में क्या हो गया आपका, होल. एंड राइट में क्या हो गया आपका, फ्रैक्शनल पार्ट. सो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस. 23 को पहले ब्रेक करेंगे, इट विल बी 20 + 3. क्लियर. एंड देन यू विल मेक वन मोर प्लस. उसके बाद ये डेसिमल के बाद क्या है, 4 है ना. इट मीन्स कौन सा प्लेस वैल्यू है, 10th. यू कैन राइट 0.4 फॉर दिस. यू कैन राइट 0.4. सो दिस इज 0.4. आपने इसको एक्सपेंड कर दिया. अगेन वन मोर प्रेजेंटेशन. 20 + 3 तो ऐसा सेम रहेगा, बट यू कैन राइट 0.4 एज 4/10 ऑल्सो. क्लियर ना. ठीक है, तो आपको ये सब समझना है केवल. नेक्स्ट, यस, वन मोर थिंग. अगेन द सेम. 0.5, this is decimal. You can change that in fraction like this, 5/10, because after decimal only one digit is there now, that is 10th place value. So we'll write 10 as denominator. Okay, 10 as denominator. Next, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज हो रहा है. यहाँ पर 0.72 है एंड 0.72, इसको 0.72 नहीं बोलेंगे. ठीक है, you will write 0.72. Now see, this 7 is 10th na, and after 7 there is 2 na, it is hundredths. Clear. So you will use 100 now, because यहाँ जो नंबर है ना 0.72, ये 10th से भी आगे है. अभी हम इसको आगे देखेंगे. ये 10th से भी ज़्यादा है, ये 100th प्लेस वैल्यू तक है. सो द प्लेस वैल्यू इज 100th. सो यू राइट लाइक दिस 72/100 टू चेंज इन फ्रैक्शन. क्लियर. डेसिमल के बाद जब एक डिजिट है तो क्या होगा, दैट इज 10th एंड यू विल राइट 10 इन डिनोमिनेटर. बट डेसिमल के बाद कितना है, 2 डिजिट है. इट मीन दैट इज 100th and you will write 100 in denominator to change the decimal number into fraction. ये आपको समझना बहुत जरूरी है. this 2. okay, clear. now finally जिसकी हम बात कर रहे थे, प्लेस वैल्यू, डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट. इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से जरूर बना लेना. ठीक है. here let's understand one thing. you can see a number is there ना. ये एक नंबर, इसको समझ लो अच्छे से, है ना. आपने लास्ट क्लास में प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा. लाइक अभी देखो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे. डेसिमल पार्ट, ठीक है, डेसिमल हो गया. फिर ये लेफ्ट साइड में ये नंबर है एंड देन राइट साइड में नंबर है. यू कैन रीड दिस 347. सिंपल. बट आफ्टर डेसिमल इट इज 89 नहीं है, 89 यू विल से. सो यू रीड लाइक दिस 347.89. ओके, 89 बिकॉज दे आर पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट विद डेसिमल को तो छोड़ दें हम, डेसिमल बीच में है. डेसिमल के लेफ्ट में चलते हैं पहले. It is whole number na, it is whole part. It means the first number is ones. Clear. The second will be tens, you know, place value simply, and third will be hundreds. Clear. And after decimal के पीछे जाएंगे हम, जब backward जाएंगे, so the first will be just after decimal, it will be tenths. The first number will be tenths place value, and after that it is hundredths place value. यहाँ पे आपको वंस नहीं मिलेगा. ठीक है, यहाँ पहले क्या आ जाएगा, डेसिमल के बाद पहले क्या आएगा, टेंथ्स एंड देन हंड्रेड्स. पूरे लेसन में हमको यही समझना है केवल, दैट आफ्टर डेसिमल के जब पीछे जाते हैं तो फर्स्ट वन इज टेंथ्स एंड सेकंड इज हंड्रेड्स. टेंथ्स मीन्स 1/10 हो जाएगा, हंड्रेड्स मीन्स 1/100 हो जाएगा. क्लियर. तो ये आप चार्ट अच्छे से बना लेना अपनी नोटबुक में. नाउ यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट रूपी एंड पैसे. ठीक है, यू नो इन 1 रूपी 100 पैसे आते हैं ना. 1 रुपये में कितने होते हैं, 100 पैसे होते हैं. ठीक है. इट मीन्स ईच पैसा इज 1/100 पार्ट. यू नो, यू कैन सी यहाँ पे 1 पैसे का कॉइन भी दिख रहा है आपको, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, रुपए का 100वां भाग, मीन्स 100th पार्ट ऑफ 1 रुपी. यू नो 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, और यू कैन से 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे. ओके,
So when we talk about 1 paise, so 1 paise is what? 1 paise is 100th part of 1 rupees. It means 1 upon 100. Clear? So 2 paise means 2 upon 100, है ना? 3 paise means 3 upon 100. Okay. 5 paise means 5 upon 100. Okay. Like this you can change in rupees. So finally we'll talk about 25 paise. 25 paise you can see. So 25 पैसे लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब उसको हम रुपीज में चेंज करेंगे इट विल बी 25 upon 100 because this 25 paisa is 25th part of 100 paise. So write like this 0 rupees 25 upon 100. And finally the same thing, यहाँ पे देखो ये 100 था ना, तो 100 मतलब क्या होगा? 100 का मतलब डेसिमल के 2 प्लेस तक. So it will write like this 0.25. Yes, you can change the hundreds into decimal like this 0.25. So अगर ऐसे आपको और भी नंबर मिलेंगे 75 upon 100, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 75 upon 100 मीन्स 0.75. 21 upon 100 मीन्स 0.21. कितना ईजी है ना? आपको बस ये देखना है इट इज टेंस और हंड्रेड्स. हंड्रेड्स है इट मीन्स डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगे, ठीक है, और टेंस है 100 के बाद और डेसिमल के बाद 1 डिजिट होंगे लाइक दिस. नाउ यू विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. यू विल चेंज द टेंस टू डेसिमल्स. देखो आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको डेसिमल में चेंज करोगे. एंड अगेन वन मोर हंड्रेड्स यहाँ पे हैं और उसको आपको डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है. ये आप पूरा वीडियो को अच्छे से समझ लोगे, देख लोगे, तब आप ये दोनों क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो. यू कैन सॉल्व दिस टू वेरी इजीली. ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे इन मैथमेटिक्स. आप डेसिमल और फ्रैक्शन को अच्छे से एक दूसरे को रिलेट करके अच्छे से समझ लो, ठीक है. थैंक यू, टेक केयर.